کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں چھوٹی عید کی بڑی خوشیوں کے حوالے سے تو عید الفطر منانے کے لیے لاہوریوں کی سیر و تفریح جاری ہے۔ شہر بھر کے پارکوں میں رونقیں بحال ہو گئی ہیں، جبکہ ریس کورس میں شہری کیا کر رہے ہیں یہ جان لیتے ہیں وہاں پر کیا گہما گہمی ہے مبین حیدر سے، جو کہ اس وقت وہاں پر ہی موجود ہیں۔ جی مبین بتائیے گا۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ عید کا پہلا دن اور لوگ جو ہیں فیملیز کے ہمراہ، دوست احباب کے ہمراہ پارکوں میں موجود۔ اس وقت بھی ہم ریس کورس پارک میں موجود ہیں اور لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے یہاں پر آ چکی ہے۔ رات کے تقریباً 9 بج کے کچھ منٹ ہو چکے ہیں، لیکن لوگوں کا رش ہے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اگر میرا کیمرہ مین شہباز حنیف آپ کو دکھا سکے تو میرے رائٹ سائڈ پر جو ہے ابھی جھولوں کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کی تعداد موجود ہے۔ لوگ فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر، اور فیملیز کے ساتھ بھرپور طریقے سے لوگ یہاں پر انجوائے کریں۔ ایک فیملی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے۔ بیٹا بتائیے گا کہ آپ فیملی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، کیسا لگ رہا ہے آپ کو اور کیا دیکھ رہے ہیں پہلے دن آپ؟ ہاں جی، بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم، اور سب سے عیدی ملی، ہم اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہیں سارے، اور فل انجوائے کر رہے ہیں ادھر آ کر۔ اچھا، جیسے فیملی کے ساتھ آئے ہیں، عیدی ملی ہے، فل انجوائے کریں۔ اچھا بیٹا بتائیے گا کتنی عیدی ملی ہے، کیا انجوائے کیا ہے جب سے آپ یہاں پہ ہیں، کیا کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں آپ نے یہاں پہ؟ بہت مزہ کیا ہے یہاں پہ، بہت اچھے یہاں پہ چیزیں ہیں، جھولے لی ہیں، عیدی ملی ہے گھر والوں سے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ عیدی ملتی ہے گھر والوں سے، ماما سے ملتی ہے، پاپا سے ملتی ہے، سارے رشتہ داروں سے ملتی ہے۔ صبح سے آئے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا فیملیز یہاں پر ہیں، ان کا کہنا ہے بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر۔ ان کی والدہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ میم بچوں کو ساتھ لائے ہوئی ہیں، پہلا عید کا دن ہے، کیا تاثرات ہیں آپ کے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ اس متعلق؟ بس بچوں کو انجوائے کرنا چاہیے پارک میں آ کے، اور اس وجہ سے بچوں کو لے کے آئے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں بچے، صبح کے آئے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا بچے صبح سے یہاں پر موجود ہیں، خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں اسی طرح جو عید کی رونقیں ہیں برقرار رہیں گے اور لوگوں کی جو ایک کثیر تعداد پارکوں میں موجود ہے جو کہ عید سے لطف اندوز ہو رہی ہے، اسی طرح سے جو ہے مختلف تفریح گاہوں کا رخ کیے رہے گی اور عید کو بھرپور طریقے سے جو ہے انجوائے کیا جائے گا۔ جی شکریہ مبین حیدر۔ عید الفطر پر سیر و تفریح کے ساتھ خوابیں بھی جاری ہیں۔ عید کے موقع پر شاہی فوڈ سٹریٹ میں رش لگ گیا۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے یہ جان لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بادشاہی مسجد کے قریب فوڈ سٹریٹ میں۔ آج عید کا پہلا روز ہے اور پہلے روز عید لاہور کے اندر کھانے خوابوں سے لطف اندوز نہ ہوا جائے ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اسی لیے ابھی بھی فوڈ سٹریٹ میں خاصا رش دکھائی دے رہا ہے اور خواتین، بچے اور جوان یہاں پہ کھانے خوابوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ایک فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہاں سے آپ آئی ہیں اور کیسی اپنی عید منا رہی ہیں، کیا کیا کھائے پیئیں گی؟ جی میں کیبی کے بنو سے آئی ہوں اسپیشل یہاں لاہور عید منانے کے لیے۔ بہت سنا تھا یہاں پہ لاہور بادشاہی مسجد کے بارے میں اور یہاں کے کھانوں کے بارے میں، کڑھائی، بریانی، چائے وغیرہ، یہ سب کے بارے میں بہت سنا تھا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم یہاں پہ آ کے اپنی عید کو تھوڑا اور بنو سے عید منانے کے لیے یہاں پہ آئی ہیں، خاص کر لاہور کی جو رنگینیاں ہیں وہ دیکھنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا کھانا آرڈر کریں گی؟ کڑھائی وغیرہ اور یہاں کی ملائی پوٹی بہت مشہور ہے، وہ کھاؤں گی۔ کڑھائی اور جو ملائی بوٹی ہے وہ آرڈر کی جائے گی، اور اس کے بعد اسی طرح جو ہے بہت سے شہری موجود ہیں فوڈ سٹریٹ کے اندر جو کہ یہاں پہ کھانے خوابوں سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی نلی نہاری پہ ہاتھ صاف کر رہا ہے تو کوئی یہاں پہ کڑھائی یا باربیکیو کے مزے لوٹتا دکھائی دے رہا ہے۔ شکریہ شاہزیب۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سینٹرل جیل لاہور آمد ہوئی ہے۔ جیل کے مختلف حصوں کا دورہ کیا گیا ہے، قیدیوں سے ملاقات کی اور تحائف بھی تقسیم کیے ہیں۔ وزیراعظم نے خواتین قیدیوں کے مسائل بھی سنے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کے بہتر مفاد میں ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، ملک کو جلد بحرانوں سے نکالیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سینٹرل جیل لاہور کا دورہ۔ وزیراعظم کو جیل سپرنٹینڈنٹ نے جیل میں سہولیات بارے بریفنگ دی، جیل کے مختلف حصوں کا وزٹ کیا، قیدیوں سے ملاقات کی اور تحائف تقسیم کیے۔ وزیراعظم نے خواتین قیدیوں کے مسائل سنے اور فوری حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیراعظم شہباز شریف جیل اسپتال میں زیر علاج قیدیوں سے بھی ملے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا، میں دوسری بار اس جیل میں 6 ماہ رہا، مجھے علم ہے بعض کیسز میں بڑی تاخیر ہوتی ہے، قیدیوں کے ساتھ انصاف کے لیے کتنے سو موٹو لیے گئے، سو موٹو صرف مفاد عامہ کے لیے ہونا چاہیے۔ سو موٹو کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ عوامی مفاد عامہ، پبلک انٹرسٹ، کسی ایک کا انٹرسٹ نہیں، پبلک انٹرسٹ۔ کتنے سو موٹو لیے ان کاموں کے لیے
कि जहाँ पर कैदियों के साथ इंसाफ हो, उनके साथ बेहतरी हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जेल में बैतुल खला की सूरत हाल इंतहाई खराब है। जेल में बीमार कैदियों को तिब्बी सहूलियात में बहुत वक्त लगता है। कैदी अपने किए की सजा काट रहे हैं, मजीद अजियत देना गलत है। तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी कैदियों का बुनियादी हक है। कैदियों के लिए एक अलग हस्पताल होना चाहिए। इलाज मुआवजा ये इनका बुनियादी हक है, अगर ये उनको नहीं मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि ये पर निज़ाम सरियन ये नाइंसाफ़ी पर मबनी है। तो इसके लिए मैंने एक प्रपोज़ल दी है कि हम एक अस्पताल, डेडिकेटेड अस्पताल हो, जहाँ पर सिर्फ जो 8000 कैदी हैं, एक का पॉलिट ये मंसूबा है। अगर ये कामयाब होगा तो उसको पंजाब में इंशाअल्लाह बाकायदा एक तरतीब के साथ, एक बड़ी सोच विचार के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के बेहतर मुफाद में हमें इकट्ठा होना चाहिए। मुल्क को जल्द बहरानों से निकालेंगे। आपको बताएं कि ईद पर महंगाई ने खुशियां मांद कर दी हैं। अवाम महंगे पेट्रोल और डीजल के बाइस ईद पर घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। महंगी होती पेट्रोलियम मसनूआत ने अवाम को चकरा कर रख दिया है। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद की रिपोर्ट में। ईद पर सबकी कोशिश है कि बस घर से निकले और हल्ला गुल्ला करे, मेहमान नवाजी से लुत्फ ले, लेकिन गाड़ी मोटरसाइकिल में तेल होगा तो बात बनेगी। अब महंगाई को पेट्रोल और डीजल का भी खूब तड़का लगा है। गुज़श्ता ईद से इस ईद तक पेट्रोल 82% महंगा होकर 150 से 282 रुपए फी लीटर हो गया, जबकि डीजल 103% महंगा होकर 144 से 293 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की होशरुबा महंगाई से जेब भी खाली हुई तो सैर सपाटा महंगा होने से ईद का रंग भी फीका पड़ गया। ईद पर अवाम की अक्सरियत अब गैर जरूरी सफर से कन्नी कतराने की बात कर रही है। इस दफा बच्चों को यही कहा है कि भाई घर पे सुकून करो, जो हल्ला गुल्ला है वो चार दीवारी के अंदर ही होगा। अजीज़ो अकारब जो दूसरों शहरों से हमारे घर में आते थे, मुझे नहीं लगता वो आने वाले हैं। हम लोग जाते थे, हम टूर्स करते थे, बाइकर्स, हम लोग नहीं जाने वाले। अब भी कुछ मंचले तो होंगे जो सड़कों पर दौड़ने फिरने का कोई इंतजाम करेंगे, लेकिन जो भी घर से निकलकर गाड़ी स्टार्ट करेगा एक मर्तबा दिल को हाथ तो पड़ेगा। ईद त्योहार पर हर किसी की कोशिश है कि अपने अजीज़ो अकारब से मुलाकात करे। सड़कों पर गहमा गहमी नजर आती है और दूसरे शहरों में भी सफर होता है, लेकिन इस मर्तबा लगता है पेट्रोल और डीजल की महंगाई से ये रवायत शायद मांद पड़ती हुई नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद नमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ईद की सरगर्मियां अरूज पर हैं। हर किसी की कोशिश है कि बेहतरीन अंदाज में इस त्यौहार को मनाया जाए, लेकिन महंगाई ऐसी है कि तारीख में मिसाल नहीं मिलती है और इसमें डॉलर की महंगाई ने सबको चकरा कर रख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में लोग जाते तो रहे, लेकिन हल्की जेब वाले बस दिल को तसल्ली देकर वापस आते रहे। महंगाई ने सब ख्वाब चकनाचूर कर दिए। डॉलर की तेजी महंगाई के इस तूफान में सब कुछ ले डूबी। गुज़श्ता ईद उल फितर के मुकाबले साल भर में डॉलर 53% महंगा हुआ। ईद से ईद तक डॉलर का सरकारी रेट 184 से 284 रुपए तक आ पहुंचा। अवाम कहते हैं हर चीज महंगी है और महंगाई पर हर कोई महंगे डॉलर की ही रट लगा रहा है। 5000 लाते थे 2 पेयर्स चप्पल इजीली, वो बात नहीं है। कोई भी शॉपिंग करने जाओ तो कह रहे डॉलर महंगा हो गया, तो कोई चीज़ हमारी पहुंच से बाहर हो रही है। जो चीज़ हम शर्ट 2500-3000 रुपये में अच्छी ले रहे थे वो 5000-5500 की है। मार्केटों में ज्यादातर अशिया दरामदी हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर ज़ीशान खलील का कहना है कि डॉलर ने सब कुछ उलट कर रख दिया है। कारोबारी हालात मुश्किल से मुश्किल तर हो रहे हैं। शॉपिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमारी जो मेरे ज़हन में आता है, एक अपर क्लास थी, एक मिडिल क्लास थी, एक लोअर क्लास थी। इस साल थोड़ी एलिमिनेट होकर एडजस्टमेंट्स आई हैं। वन इज अपर एंड वन इज लोअर। जो मिडिल थी वो पुश डाउन हो गई है नीचे, तो हमारा जो पॉकेट साइज है ना वो स्क्वीज हो गया है। माहिरीन के मुताबिक महंगाई में बेलगाम डॉलर का किरदार सबसे अहम है, जिसने समाजी जिंदगी के रंग भी फीके कर दिए हैं। डॉलर रेट आउट ऑफ कंट्रोल होने से मजमूई तौर पर मुल्क की मईशत दबाव में नजर आती है, तो इसके साथ साथ लोगों की कुव्वत खरीद कम होने से ईद जैसे त्यौहार पर भी बहुत सी ख्वाहिशात लोगों की दिल में ही रह गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद नमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ईद उल फितर की छुट्टियां, शहर के मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। सिर्फ लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे पर काम जारी है। शाहदरा फ्लाईओवर, समनाबाद अंडरपास समेत दीगर मंसूबों पर 26 अप्रैल से दोबारा काम का आगाज होगा।
ईद उल फितर की छुट्टियां, शहर के मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिफाजती शीट लगाकर काम को बंद कर दिया है। LDA की हिदायत पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने लेबर को छुट्टी दे दी है। ज़ेरे तामीर मंसूबों पर काम का दोबारा आगाज 26 अप्रैल से होगा। शाहदरा फ्लाईओवर पर ग्रिडर्स बिछाने का काम ईद के बाद दोबारा शुरू होगा। LDA सिटी स्कीम में सड़कों की तामीर का काम भी बंद कर दिया गया। सगियां तोसी मंसूबा, शाहकाम फ्लाईओवर और समनाबाद अंडरपास पर भी काम बंद है। सड़कों से तामीराती मटेरियल हटाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की मशीनरी काम कर रही है। ईद की छुट्टियों में समनाबाद मोड़ से मुल्तान रोड की एक साइड ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे पर काम जारी रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स को ईद की छुट्टियों के दौरान डबल शिफ्ट में लेबर से काम करवाने की हिदायत की गई है। महंगी बिजली, ओवर बिलिंग और अब गैर एलानिया लोड शेडिंग बिजली के सार्फिन को मजीद झटके। आइंदा माह बिजली की तलब बढ़ने पर आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। सार्फिन के लिए बिजली का आना भी मुश्किल और जाना भी अजाब। महंगी बिजली और ओवर बिलिंग से सताए सार्फिन पर लोड शेडिंग का जिन भी मुसल्लत हो गया। ज़राए के मुताबिक मौसम अभी शदीद गर्म नहीं हुआ, जिसके बायस अप्रैल में बिजली की तलब 4000 मेगावाट से जायद है। गुज़श्ता साल अप्रैल में बिजली की तलब 4700 मेगावाट से जायद थी। पावर सेक्टर ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद रोज में गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर बिजली की तलब मजीद बढ़ेगी। जून और जुलाई तक लेस्को की तलब 6000 मेगावाट तक पहुंचने का इम्कान है, जिससे एक बार फिर लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो जाएगा। गुज़श्ता साल जून जुलाई में लेस्को को 1000 मेगावाट से जायद शॉर्टफॉल का सामना रहा, जिसके बायस लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे तक पहुंच गया था। ज़राए का कहना है कि रवां साल गुंजान आबाद इलाकों के ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड न होने से बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी में मुश्किलात का खदशा है। ईद के पहले रोज़ चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और लेस्को चीफ शाहिद हैदर का लेस्को के पावर डिस्पैच कंट्रोल सेंटर का दौरा बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी का जायज़ा लिया गया। लेस्को हुकाम कहते हैं ईद पर बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाएंगे। लेस्को इंतजामी का ईद के दिनों में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी का ऐलान। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नमान और लेस्को चीफ शाहिद हैदर का PDC का दौरा, बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी का जायजा लिया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर और पावर डिस्पैच सेंटर के अफसरान ने चेयरमैन POD को ब्रीफिंग दी। हाफिज नमान का कहना था कि ईद के दिनों में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को भी यकीनी बनाएंगे। लेस्को चीफ शाहिद हैदर खुद तमाम सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लेस्को इंतजामी के वादे के मुताबिक बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी जारी है। आइंदा आने वाले दिनों में जबकि गर्मी का ज़ोर आने वाला है और जबकि बिजली की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगी, इंडस्ट्री भी चल जाएगी और गर्मी की वजह से एयर कंडीशनिंग भी चलेगी, तो उन दिनों के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला इस रुझान को हम जारी रखेंगे कि कम से कम लोड शेडिंग का दुरानिया रखा जाए। लेस्को चीफ शाहिद हैदर का कहना था कि ईद के दिनों में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। मौसम बेहतर होने के बायस बिजली की तलब भी कम है। मौसम की वजह से और इंडस्ट्री चूँकि बंद है ईद के दिन, तो इस वक्त हमारी जो डिमांड है वो 1797 मेगावाट है, जो कि बहुत कम है। और इसमें जो हमारे कैटेगरी 3 और 4 के फीडर्स हैं उनमें रूटीन के मुताबिक, क्योंकि वो हाई लॉसेस फीडर हैं, वो बंद हो रहे हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नौमान का कहना था कि शदीद गर्म मौसम में भी कोशिश करेंगे कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम से कम हो। कैमरामैन नौमान इजाज के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं, शहरी लाहौर का शाहकार मंसूबा मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के सबब बदनुमा नजर आने लगा। ट्रेन के पिलर्स पर लगे इखलाकियात से आरी इश्तिहारात और बैनर्स का अवेजा होना हुकूमती अदारों की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन की खूबसूरती इंतजामिया की लापरवाही की भींट चढ़ गई। 27 किलोमीटर ट्रैक में से 25 किलोमीटर ट्रैक एलिवेटेड है, जो 317 से ज्यादा पिलर्स पर बनाया गया। हुकूमत पिलर्स को रेवेन्यू के हसूल में सूदबंद बनाने के लिए खातर खा इकदाम ना कर सकी। डेरा गुजरा से शुरू होने वाले एलिवेटेड ट्रैक के पिलर्स पर मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चल रही है। किसी मुकाम पर महाफिल और कॉन्फ्रेंस के इश्तिहारात तो किसी स्टॉप पर टेक्निकल स्टाफ की जरूरत के इश्तिहार लगे हैं। कहीं निजी अकेडमी के इश्तिहारात तो कहीं गैर मरूफ सियासी पार्टियों ने अपनी तशहीर कर रखी है। इसी तरह CSS की तैयारी करवाने वाली अकेडमी के इश्तिहारात की भरमार। अताई डॉक्टर ने भी अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए बालचर इलाज के नुस्खे और वॉल चौकिंग की है। पिलर्स को आउटसोर्स करने के लिए बारहा अखबार इश्तिहार के जरिए फर्मों से इजहार दिलचस्पी तो तलब किए गए, मगर हर बार मास ट्रांजिट अथॉरिटी को सुबकी का सामना करना पड़ा और अभी तक पिलर्स की आउटसोर्सिंग नहीं हो सकी।
शहर लाहौर के बासियों ने गैर कानूनी इश्तिहारी मुहिम की पुष्ट पनाही की जिम्मेदारी भी हुकूमत पर डाल दी और कहा कि अगर इदारे इन पिलर्स को कानूनी दायरा कार में लाकर लीज पर दें तो इनकी खूबसूरती भी बहाल होगी और हुकूमत को आमदन भी आएगी। जब आपने इतनी खूबसूरत ऑरेंज ट्रेन बना दी है, इनके पिलरों को भी खूबसूरत होना चाहिए। इधर कोई फजूल बैनर, कोई फजूल फ्लैक्स गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर कतई नहीं होनी चाहिए। ये पिलर पे जो इश्तिहार लगे हुए हैं ना, ये लगने नहीं चाहिए। अगर लगे तो कॉमर्स की फीस ले, यहाँ से खूबसूरत करेगा। पिलर्स पर हुकूमती अदम तवज्जी के बाइस शहर लाहौर का हुस्न बर्बाद हो रहा है। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स पर गैर कानूनी इश्तिहारी मुहिम शहर लाहौर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग बन रही है। खूबसूरत लाहौर मंसूबे के दावेदार हुकूमती इदारे ऑरेंज ट्रेन से नजरें चुरा रहे हैं। मजबूत और जामे पॉलिसी के जरिए इन पिलर्स को खुशनुमा और हुकूमती आमदन में इजाफे का जरिया बनाया जा सकता है। कैमरामैन उमैर इसके साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।